Good evening, everyone. Myself, Nikita Gupta. I am welcoming you on my channel, Science Bio Weapon. Today, I am here with that syllabus and the design of question paper issued from CBSE 2020 exam. So, quickly we will discuss this question paper pattern, and then we will continue with the journey of our preparation. Okay, students. Now as you can see in this particular question paper pattern, we have four different sections over there. The very first section is section A. As you can see, this section A is containing objective type of questions over there. The very short question, assertion and reasoning. That means these questions are carrying 1 marks each, and these questions are basically very short. That means one word and one statement questions are there. And assertion reason, these are the special type of question introduced from the CBSE, which was earlier asked in case of medical entrance and some more higher exams, but now it has been introduced in your curriculum also, because this is basically logical based question. In this type of question, two statements were given. The one is your assertion and the another one is your reasoning question. In assertion, they have given you such a statement, and the reason is explanation of that particular question. If it is suitable for that, then it is correct explanation. If it is not, then some other options are there. So in that way, you have four options to crack that assertion and reason. And these number of question number 1 to 16, that means all total 16 questions were given over there, and each question is carrying 1 marks. Now coming on the case study, this is the second type of question carried in section A, in which question number 17 to question number 20s are coming over there. And in that each question 4 MCQs and maybe assertion and reason will be given over there. This is only assumption, because CBSE has given us only one sample paper over there. In that sample paper, he has given this option, CBSE has given this option, that in case study 5 questions were given over there, and student needs to select or opt only 4 questions. So that in each case study you will get 4 MCQs. That means they are also containing 16. So this section A is very much scoring, because it is containing 32 marks. So it is very important to opt in very first hour of your question paper during your examination time. Now coming on section B, this section B is containing very short to answer type of question, which is word limit containing 30 to 50 words. That means hardly 2 or 3 statements, or maybe one paragraph, one simple diagram, one give reason type of questions will be there. And this section is containing question number 21 to 26. That means all total 6 question, and each question is of 2 marks. That means this section is of only 12 marks particularly. Now coming on this section C, you can see there that short answer type of question 27 to 33. This is very important section, because in this question, direct question, diagram based question, even some type of proving numericals, each and everything will be given in that particular section. If you will study thoroughly, then you will definitely crack this section also, because here 7 questions are given. That means 21 marks this particular section is carrying. After this section A, this section C is very important, because it is containing 21 marks. Now coming on section D, this is long answer type of question, and this section is containing only 3 questions, in which each question is containing 5 marks. That means all total 15 marks will be given or contained by this section D. अच्छी बातें क्या क्या है पहले इस क्वेश्चन पेपर पैटर्न की मैं ये देख लूँ. ठीक है, पहली अच्छी पॉजिटिव बात दैट कि यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस मिलती हैं. दिस इज वेरी गुड थिंग कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसी के नीचे एक दूसरा उसका पार्ट दिया होगा, अगर वो अच्छा लगता है तो आप वो ऑप्ट कर सकते हो. हाँ, अब बुरी चीज क्या हो सकती है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बचपन से आदत पड़ी होगी कि 12 में से 7 क्वेश्चन कर ले, 10 में से 3 क्वेश्चन कर ले. अगर ऐसा कुछ चॉइस आपने बना के कभी रखा होगा तो वहां प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल आपको कोई भी चॉइसेस नहीं मिलते हैं. इंटरनल चॉइसेस वर गिवन बाय CBSE, एंड दैट इज वेरी गुड थिंग ऑल्सो, आई थिंक, आई बिलीव. एंड अच्छी चीज़ें और क्या हो सकती हैं कि सेक्शंस हमारे बहुत अच्छे से डिसाइडेड है. जैसे केस स्टडी में अगर आप देखते हो तो आपको एक बायोलॉजी की केस स्टडी, एक केमिस्ट्री की केस स्टडी, 2 फिजिक्स की केस स्टडी मिलती है.
लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का, एक क्वेश्चन बायोलॉजी का, एक फिजिक्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सेक्शन वाइज आपका पूरा पेपर डिवाइडेड है। तो अगर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ करके जाते हो, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। नाउ कमिंग ऑन, देयर आर फ्यू टॉपर सीक्रेट्स विच आई बिलीव कि आप लोग जितने लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आप सब बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। एंड दैट इज़ वाई आई हैव रिटन इन माई वेरी फर्स्ट और वी कैन से द सेकेंड वीडियो में ही हमने ये चीज़ लिखने की कोशिश करी है, बिकॉज यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाह रखते हो किसी भी चीज़ की तो आप उसे डेफिनेटली हासिल कर सकते हो, ये मेरा बिलीव है और ये आपका भी बिलीव होना चाहिए कि आज से अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को ज़रूर अचीव करोगे, क्योंकि आपके अंदर वो चाह आ चुकी है तो आप उसे पा भी सकते हो। Now coming on science topper secret, it is important to make clear and neat diagram along with the proper labeling। ये बहुत बार होता है बच्चों, ये बहुत बार होता है कि हम डायग्राम बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन हम लेबलिंग गलत करके चले जाते हैं। तो सोचो आपने जितनी पूरी मेहनत करी, आपने बहुत अच्छी सी सब्जी बनाई, आपने बहुत अच्छी सी चाय बनाई, आपने बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई, आपने चीनी नहीं डाला, आपने नमक नहीं डाला, क्या फ़ायदा रह गया? तो एक छोटी सी चीज़ आपने सब कुछ अच्छा करके आया लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसका आपको नंबर नहीं मिल रहा है, अगर आपने उसकी प्रॉपर लेबलिंग नहीं करी तो। एंड ऑल द फॉर्मूलाज टेबल मस्ट बी थरली लर्न। क्यों? बिकॉज हम केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं, हम चीज़ों को जब सॉल्व कर रहे होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओ 2 कहाँ लगाना चाहिए था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 लगाना भी चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए, अरे NaOH पे तो नहीं लगता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस तरह की जो छोटी छोटी सी कंफ्यूजन हमें एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके होती है, वो कहीं ना कहीं हमारा टाइम किल करती है, हमारा कॉन्फिडेंस किल करती है और कहीं ना कहीं हमें डीमोरलाइज करती है, जो हमें नहीं होने देना है। इसलिए हम सारे फॉर्मूलाज अच्छे से रेड करके जाएंगे, सारी थ्योरीज अच्छे से पढ़ के जाएंगे, डायग्राम को अच्छे से लेबल करेंगे, ताकि जो कॉन्फिडेंस है, जो मोराल है, वो ऐसे के ऐसे बना रहे और हम अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए। थ्योरीज मस्ट बी स्टडीड इन डेप्थ। कोई भी थ्योरी, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसे अच्छे से पढ़ो और दिमाग से लगाने की कोशिश करो कि अगर किसी ने ये चीज़ मुझे बोली है तो वो क्यों। साइंस की मीनिंग होती है टू नो। आपका अधिकार है चीज़ों को जानने का। अगर कोई भी टीचर या कोई भी इंसान या कोई भी प्रोसेस आप देखते हो, आपको पता चलता है कि वो चीज़ हो रही है, तो आपका अधिकार है पूछने का कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और कब हो रही है। एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर्स, बिकॉज साइंस का मतलब ही होता है टू नो। दैट मीन्स कि आपको चीज़ों के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट, रिटन प्रैक्टिस। सब कुछ बढ़िया है, मेरी बातें भी बहुत अच्छी लग रही होंगी, सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे बोलने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि फ्यूचर में हमें रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन द थिंग इज, अगर हम रिटन प्रैक्टिस ही ना करें, ये भी तो मैंने रिटन किया ना, मैं भी तो लिख करके बता रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ तो सिर्फ बोल करके बता सकती थी, लेकिन मैंने अगर लिख करके बताया, दैट मीन्स समवेयर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कोई चीज़ बता रही हूँ तो उसे लिख के प्रैक्टिस करे, 10 बार प्रैक्टिस करे, 10 बार चीज़ें करने पे कहीं ना कहीं दिमाग में आकर के बैठेगी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप मेरी चीज़ें आपको समझ में आई हो। अब मिलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में, जहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस में जो कि बहुत बार पूछा गया है। तो हम लोग आज की जो क्लास है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। इफ़ यू लाइक टिल नाउ, यू कैन, अभी भी आप जा करके लाइक कर सकते हो। अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हो मुझसे क्वेश्चन। अब मिलते हैं सेकेंड पार्ट पे।